students. So, as you know, we have started our chapter 2 and its name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Here it shows the meaning, the title has its great meaning, students, because the title itself shows that if we all are together, then any disaster comes to us, we are ready to face the disaster, isn't it? कुछ भी मुसीबत आती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, बट अगर हम लोग सब साथ में हैं तो वी कैन क्रॉस एवरी प्रॉब्लम एंड वी कैन सॉल्व एवरी सिचुएशन. हर एक सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट हियर द ऑथर गॉर्डन बुक एंड एलन लिस्ट सेड दैट इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, अगर मरने से डर नहीं लगता तो वी कैन डू एनीथिंग, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. एंड हियर द नैरेटर हैज स्टार्टेड the honing our seafaring skill for flourishing their sailing skills. उनके जो voyage उनको सी के ऊपर sailing करना था, तो उनके skill को flourish करने के लिए they have started to, and we can say that they started the journey and they decided to make the round to the world. And on July 1976, the narrator with his family, that is his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Susan. So they have started their journey with 2 crewmen. One is Larry Vigil, it is American, and Herb Ziegler, it is Swiss. So with these 5 people or 6 people, they have started their journey, and whenever up to 105,000 kilometers, their journey was very pleasant. But whenever they started their journey to east of Cape Hope, the sea waves have taken their tremendous nature and they have harassed the narrator's ship, and the huge waves that are rising towards from the sea. The narrator is saying that the waves are about 8 knots, means very big waves, and they destructed the ship of the narrator. Now, what is the name of the ship of the narrator? That is Wave Walker. Okay, so the Wave Walker was broken, and you know what was the situation. In the previous lecture, I have explained it very nicely that how the deck was broken, the narrator was fell into the water, then anyhow he tried to come inside the ship, and he told his wife to handle the wheel, and he went there for doing some repairing work and getting with the children. So whenever he started the repairing work, he found that all their clothes and crockery, toys, tins, all were scattered in the water, and they are making the thundering sound there. And the two crewmen were doing their work very bestly. We can say they were putting out the water continuously throughout the night. The narrator himself with the two crewmen and the family members, including also, they have pumping out the water outside the ship. And the writer was saying that they got no mayday calls on that day, means they haven't got any radio signal from the control room, and that is the great irony of their journey, because no one has noticed them that how they are in the critical situation. Okay, how they are trapped in the critical situation. Then also no one is giving the support to him, no one is giving the, we can say that, motivation to him. Then selfly they have taken the inspiration and they started to pumping out the water, because they have a faith in your mind that if we are all together, we can do anything. If we are not afraid to die, then we are do anything. That is why the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. So with this we have completed. Now move ahead. Here the writer is saying that the writer hasn't got any mayday calls. Sue's head was swallowing, his eyes become black, and she has one crack in her arm also. Okay, cut, not crack, cut in her arm. So now what the writer is saying. On the morning of January 3rd, the pumps had reduced the amount of water on board. Each of them took rest for 2 hours, turn by turn. They had survived for 15 hours since the waves hit the Wave Walker, but she was not strong enough to take them to Australia. Now, the irony of the ship and their journey, the narrator is explaining here. Up to morning, it's January 3rd, they have pumped the water continuously, and because of the pumps, the amount of water is reduced from the upper part of the board, and they were successful
considering that so turn by turn they have taken 2 hours rest. All were not have taken the sleep at a time, but turn by turn they have taken some rest nearly about of 2 hours, and they survived for 15 hours since the waves hit the wave over. Means from last 15 hours they were, we can say that, started their work of throwing out the water from the ship. So the writer is saying that now, because of the sudden striking of the mighty waves, the wave walker becomes very weak. The wave walker is not strong enough to take them to Australia, because from that place wherever they are, they are to the east of the Cape Town. So from that place only the Australia is nearer to them, Australia continent. But the narrator is saying that their ship wave walker is so weak now because the ship will not take them to Australia. So again there is a great irony, because it is not possible that through the dinghies means small boats, the writer and his family went to Australia continent. No, because the waves are too powerful and the small ship or the small boats are not survived in front of the powerful waves. So that the writer was thinking about it. Now what he had done, see, he checked the charts. He calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. Then at that time the writer had checked some charts, and he found that, he calculated and he found that 2 small islands were only few kilometers away from the east, because they were in the east of Cape Town, and the narrator found that 2 small islands were there and they are few hundred kilometers only. So anyhow or very slowly they can reach to the journey. Okay, then the writer is saying that he hoped to reach Île-Armistice, a French scientific base. Now the narrator has hoped something, that he wanted to reach to Île-Armistice. It is a French scientific island or base, we can say island. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, they reached the last few centimeters of water. So continuously up to 4th January means 36 hours they have pumped the water continuously, and they reached to few centimeters of water. Now they had to keep a pace, first meal in almost 2 days. Sorry, kuch reh gaya. They have to keep a pace with the water still coming in. Mary found that corn, wheat and cracker biscuits, they ate their up and first meal in almost 2 days. The writer is saying that with the strong efforts of 36 hours, they continuously pumped out the water, and they are few centimeters away from the water now. And the writer is saying that they were continuously pumping the water and the water is still coming in. Either they have continuously pumped the water, then also the water is coming in. So Mary found some biscuits and beef. So after 2 days they have taken their first meal. Got it guys? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? 36 आवर्स तक वो लोग पंपिंग यानी पानी बाहर निकलते रहे। 36 आवर्स यानी अप टू 4th जनवरी जब वो पहुंचे 4th जनवरी मॉर्निंग को, तब उनको पता चला कि काफी अभी शिप जो है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है पानी से, एंड द वाटर जो था शिप के अंदर वो काफी बाहर निकल चुका है, और थोड़ा बहुत जो पानी बचा था दे वर इजीली थ्रो आउट इट, वो उसको इजीली थ्रो कर देते। उसी वक्त मैरी को कुछ बीफ और बिस्किट्स मिले, एंड आफ्टर 2 days दे हैव टेकन देयर फर्स्ट मील। लगभग 2 दिनों के बाद उन्होंने अब खाना खाया था। वो भी खाना क्या, थोड़े बिस्किट्स थे, क्रैकर्स और बीफ, थोड़ा बहुत था जो सबने थोड़ा थोड़ा मिलके खाया। एंड द राइटर इज सेइंग दैट नियरली ऑफ अबाउट 2 days वी हैव टेकन अवर फर्स्ट मील। नाउ द राइटर इज सेइंग हियर दैट their relief was short-lived. At 4 p.m. black clouds began building up. Within an hour, the wind was back to 40 knots. Then क्या हुआ देखो? They were very happy, but their happiness can't extend. उनका happiness ज़्यादा देर तक चला नहीं, because at 4 p.m. यानी शाम को 4 बजे black clouds began gathering in the sky, and within an hour the wind was back to 40 knots. Knots means the unit of measuring the power or length height of the waves. 40 knots की wind जो है वो इतने जोर से बहने लगा। The seas were getting higher, और seas की जो waves है वो ऊपर चढ़ने लगी।
थ्रू आउट द नाइट द वेदर बिकम वर्स, और रात होते होते द वेदर वॉज वेरी वर्स, और वेदर बहुत ही खराब हो गया। By dawn on January 5th, their situation was extremely dangerous. फिर जनवरी 5th के dawn यानी 3 या 4 बजे का समय होगा, 4 या 5 बजे का, their situation was very, we can say that, critical, dangerous. The narrator went into the comfort the children. John asked if they were going to die. फिर उनको अभी तो पता चल गया कि एक तो पहले ही उनका शीप जो है वहाँ पर इट वॉज वेरी वीक, वो वीक हो चुका था, और इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव के सामने उनका शीप टिकेगा, ये उनको बिल्कुल कंफर्मेशन था कि ये शीप जो है उनके वेव्स के सामने टिकने वाले नहीं है। सो उसका जो बेटा था नैरेटर का 6 years old हुआ जॉनथन, ही आस्क्ड वन क्वेश्चन टू हिज फादर, उसने उसके पापा को पूछा कि डैडी वी आर गोइंग टू डाई, अभी हम लोग बचने वाले नहीं हैं, हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि शीप ही नहीं बचेगा तो फिर ये लोग जाते कहाँ। और वो जो सी की वेव्स है, सी की जो लेवल है वाटर की, वो अचानक से इतनी बढ़ गई, विंड 40 नॉट्स की स्पीड पे जा रहा था, तो इतने स्ट्रॉन्ग विंड के सामने उनका जो वेव वॉकर है वो इतना वीक हो चुका था, तो उसके सामने टिकना यानी पॉसिबल ही नहीं था। दैट इज व्हाई जॉन आस्क्ड वन क्वेश्चन टू हिज फादर, दैट फादर और डैडी वी आर गोइंग टू डाई, कि अभी हम लोग मरने ही वाले हैं। द नैरेटर ट्राइड टू अज्यूम दैट दे कुड मेक इट, उसके डैड ने उसको प्रॉमिस किया, नो नो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। उसके डैडी ने उसको बोला कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, मैं कोशिश करता हूँ। Assurance means promise. Then John said, "We aren't afraid of dying if we can all be together." इतने में वो 6 years old बॉय को देखो कितनी समझदारी थी, वो अपने डैड से बोलता है कि डैडी मुझे डरने का और हमें डरने का, मरने का डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सब एक साथ हो तो मरने से क्या डरना। यानी देखो what the great sympathy the 6-year-old boy Jonathan was given to his dad, कि वो छोटा सा बच्चा है, he was only 6 years old, तो भी वो किस तरह की सिंपैथी अपने डैड को दे रहा है, और वो बोल रहा है कि डैडी मुझे या हम सबको मरने से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं, तो अगर मरेंगे भी तो सब साथ में लगेंगे, सो वी आर वेरी लकी। ऐसे वो अपने डैड को एक सिंपैथी दे रहा है। द नैरेटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू रिस्पॉन्ड, नैरेटर वाज स्पीचलेस, नैरेटर को पता ही नहीं चला, समझ में ही नहीं है कि वो आंसर क्या है। सो ही hadn't replied, उसने आंसर नहीं दिया। He determined to fight the sea, फिर उसने तय कर लिया, he decided to fight with sea, कि सी के साथ अभी फाइट करनी है, देखते जो होगा वो, लास्ट में तो मरना ही है, पर इतने इजीली नहीं मरना है। नेवर गिव अप, है ना, तुमने प्रोवर्ब सुना होगा कि नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप करने का नहीं लाइफ से। So to protect the weak starboard side, he decided to stop the ship with the undamaged port hull facing the oncoming waves. अभी जो स्टारबोर्ड था उनका, तुमको पता है उसके पिलर्स पहले ही टूट चुके थे, जिसकी वजह से वो जो ऐसा पार्ट था वो गिर चुका था। तो नैरेटर ने डिसाइड किया कि शिप को इस तरह से मूव करता हो कि जो अनडैमेज्ड पार्ट है वो वेव के सामने रखता हो, ताकि जो भी डैमेज पार्ट है अगर वेव के सामने उसको रखता तो वो टूट जाता। So the starboard was nearly broken out, so the narrator decided to keep the undamaged part in front of the waves. इसलिए नैरेटर ने डिसाइड किया कि जो अनडैमेज्ड पार्ट है उसको वेव्स के सामने वो रखेगा, जिसकी वजह से वो जो वेव्स है वो अनडैमेज्ड पार्ट को ज्यादा डैमेज करेगी तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज स्टिल इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग था वो जो पार्ट था वो। एंड ही यूज्ड टू impoverish the sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. More water rushed in through the broken planks in the evening. फिर उसने डिसाइड किया कि उसके पास जो सी एंकर था उसने उसको नाइलॉन रोप से पक्का बांधा, उसको वेट करने के लिए 22 लीटर प्लास्टिक के बड़े बड़े पैराफिन के बैरल्स बने हुए थे, उनको साइड में सपोर्ट के लिए रखा ताकि उनका शिप हिले नहीं। एंकर जो है उसको पानी में डाला फिर 2 पैराफिन बैरल के साथ, और पानी जो है वो अंदर आ ही रहा था ब्रोकन होल्स में से, बट ओके उन्होंने उस इवनिंग तक उतना तो मैनेज किया कि उनका शिप उल्टा ना हो। वेव्स कितनी भी पावरफुल है, उसने जो अनडैमेज पार्ट था मीन जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो सामने रखा, जिसकी वजह से जो वेव्स थी वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती। किसके ऊपर? वो स्ट्रॉन्ग पार्ट के ऊपर। तो वो तो एक बचाव हो गया। दूसरा उसने एंकर सी के अंदर डाला विथ 22 लीटर्स ऑफ पैराफिन फील्ड बैरल्स, पैराफिन से भरे हुए बैरल्स थे, जिसकी वजह से उनका शिप एक जगह पे टिकता, ओके, दूसरी जगह वो हिलता नहीं है, टर्न अप भी नहीं होता। ओके गाइस, अभी देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट।
Okay, what we have seen? That we have seen that the narrator has made the adjustment with the anchor and we can say that 22 liter of plastic barrel of paraffin and he managed to made the ship stand still. वो ship जो है वो एक जगह से हिले नहीं, इस तरह से उसने मैनेज किया. Then what happens here? On the morning of January 6, the wind become less severe. फिर January 6 की morning में wind इतना severe नहीं था. The narrator got a reading on the sextant. Sextant is the measurement of the means here it is given 1 second. Sextant means an instrument for measuring the angle and distance. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितने एंगल क्रॉस करना है, कितने एंगल टर्न होना है, वो मेजर करने का यूनिट है सेक्सटेंट. सो नैरेटर हैड सीन द सेक्सटेंट. उसने वो सेक्सटेंट 6 जनवरी को चेक किया. ही मेड क्विक कैलकुलेशन. उसने कैलकुलेट कर लिया. शी केम इन एंड गेव हिम अ कार्ड शी हैड मेड. इतने देर में क्या हुआ देखो, उसकी जो बेटी थी शिव, शी वॉज 7 year old गर्ल. शी हैड मेड 1 कार्ड. ग्रीटिंग कार्ड जैसा होता है ना, वैसे उसने एक छोटा सा कार्ड बनाया था. एंड शी हैड गिवन दिस कार्ड टू हर डैड. उसने अपने डैडी को वो कार्ड दिया. शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड नैरेटर. उसने कार्टून्स बनाए थे. कैरिकेचर्स कार्टून्स, कार्टून्स के फॉर्म में ड्राइंग बनाया था. उसमें उसने नैरेटर, उसकी मॉम मैरी, शी हरसेल्फ एंड हर ब्रदर जोनाथन, 4 लोगों के उसने कैरिकेचर्स बनाए थे. एंड इट ऑल्सो हैड अ मैसेज एक्सप्रेसिंग लव एंड थैंक्स. और मैसेज भी लिखा था, इट वॉज द मैसेज ऑफ लव एंड थैंकफुलनेस. उसने नीचे लिखा था कि वी ऑल आर द फैमिली, वी आर लविंग टू ईच अदर वेरी मच, दैट इज व्हाई वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बिकॉज वी ऑल आर टुगेदर हियर. एंड द मैसेज ऑफ थैंकफुलनेस वाज रिटन बाय द स्यू फॉर सुजान एंड शी हैड गिवन दिस कार्ड टू हर फादर. उसने वो जो कार्ड है उसके फादर को दिया. एट 2 PM आफ्टर चेकिंग कैलकुलेशंस द नैरेटर आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. 2 बजे लगभग उसने सब कैलकुलेशन चेक किए और उसने लैरी जो 2 क्रू मैन्स थे उसमें से एक को बोला कि हम लोगों को 185 डिग्रीज पे टर्न होना है. ही कुड देन एक्सपेक्ट टू सी एन आइलैंड एट अबाउट 5 PM. और उसने एक्सपेक्ट करके रखा था, अज्यूम करके रखा था कि 5 बजे के आसपास हम लोग कोई भी एक आइलैंड में तो पहुंच ही जाएंगे. ही हैड मेड सम अजम्पशंस. उसने कुछ ऐसे कैलकुलेशंस करके रखे थे और डिसाइड किया कि 5 बजे के आसपास हम लोग कोई भी एक आइलैंड तक तो पहुंच ही जाएंगे. देन ही वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन हिज बंक एंड डोज्ड ऑफ. और वो नीचे गया और बहुत ही थकावट थी क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 4 days कंटिन्यूअसली ही वाज मेकिंग द एफर्ट्स टू सेव देयर फैमिली, टू सेव हिज फैमिली. सो वो बहुत थक गया था जिसकी वजह से वो अचानक से उसकी आग लग गई एंड ही स्लेप्ट ऑफ. और वो वहाँ पे सो गए. Now he woke up at 6 PM. John entered and asked if he could embarrass his daddy. फिर 6 बज गए थे और उसका जो बेटा था जोनाथन वो अचानक से रूम में आता है और डैडी बोलते हैं कि डैडी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप तो गहरी नींद में सो रहे थे. अभी देखो क्या होगा. What the assumption he had made. उसने क्या assumption किया था कि up to 5 o'clock we were to nearby island, कि हम लोग एक कोई भी आइलैंड पे 5 बजे तक पहुंच जाएंगे. पर 1 घंटा लेट. वो 6 बजे तक सो रहा था, उसका बेटा उसको जगाने आया था, उसकी नींद खुली तब तो 6 बजे थे. अभी क्या होगा देखो. He woke up at 6 PM. John entered and asked if he could embarrass his daddy. She was right behind him. They called him the best daddy in the whole world and the best captain. They informed him that they had found the island. और उसने जब देखा जोनाथन आ गया था, उसकी बेटी पीछे थी और थोड़े ही समय में उनको थोड़ी ही दूरी पे आइलैंड दिखाई दिया. वो लोग बहुत खुश हो गए. तुम लोग भी समझ सकते हो कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद ये जो खुशी थी, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस दिस एंजॉय और दिस वी कैन सी दैट प्लीजेंट मेमोरी और अ मोमेंट इन फ्यू वर्ड्स. वर्ड्स में हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वो पूरी फैमिली खुश हो गई और उन्होंने बोला, बच्चों ने अपने डैड को बोला कि यू आर द बेस्ट कैप्टन बिकॉज यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम द डेंजर. क्योंकि बच्चों ने अपने डैड को बोला कि आप बहुत ही अच्छे कैप्टन हो, क्योंकि सिर्फ आपकी ही वजह से हम लोग हमारे ये डेंजरस जो हम लोगों ने खतरे में से वेरी डेंजरस मोमेंट्स दे हैड गॉन, बहुत ही डेंजरस मोमेंट्स में से वो गए थे, उसमें से उसके डैड ने उसको बचाया. इसलिए बच्चे उसको बोल रहे हैं कि यू आर द बेस्ट कैप्टन इन दिस वर्ल्ड. एंड द नैरेटर रश्ड ऑन डेक. ही सॉ द आउटलाइन ऑफ द आइलैंड ऑफ एल आर्मस्टन डैम. That night they anchored offshore. फिर
उसने देखा, उसको कौन से आइलैंड पे जाना था, आमस्टरडैम, वो याद रखो स्टूडेंट। The narrator wanted to reach the nearby island. It is few hundred kilometers away from the seashore and the name of the island is El Amsterdam. वो आइलैंड पे उसको जाना था एंड फाइनली दे रीच देयर। शाम तक वहां पे वो लोग पहुंच गए और वो पहली नाइट उनकी ऐसी थी जो उन्होंने जमीन के ऊपर यानी ऑफ टू सी शोर यानी सी शोर से बाहर उन्होंने गुजारी, क्योंकि अब तक वो जहाँ से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था लगभग कितने मंथ हो चुके थे, 6 से 7 मंथ्स, क्योंकि जुलाई से उन्होंने स्टार्ट किया, 6 मंथ से वो लोग शिप के अंदर ही थे। इट इज देयर फर्स्ट नाइट दैट दे हैव स्पेंड द नाइट टू सी शोर ऑफ, उन्होंने सी शोर से बाहर यानी सॉइल के ऊपर या आइलैंड के ऊपर उन्होंने वो नाइट गुजारी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered them and helped them ashore। और 28 जो इनहेबिटेंट्स वो आइलैंड के ऊपर रहते थे, कौन से आइलैंड के ऊपर, आर्मस्टरडैम, वहां पे वो जो 28 इनहेबिटेंट्स रहते थे उन्होंने उसको चीयरफुल किया नैरेटर को और उनका जो शिप है उसको रिपेयर करने की कोशिश की। एंड आफ्टर रीचिंग द लैंड द नैरेटर थॉट ऑफ लैरी एंड हर्बी, दे हैड बीन चीयरफुल अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस। Mary had stayed at the wheel for those crucial hours. Then he thought of his 7-year-old girl who did not want them to worry about her head injury and of the 6-year-old boy who was not afraid to die. जब उनका चीयरअप उन्होंने किया नैरेटर को उसकी फैमिली के साथ, तब नैरेटर के माइंड में अलग अलग थिंकिंग्स आए। हम लोग सोचते देखो कि हम लोग कितनी खतरनाक सिचुएशन में से बाहर निकल के बचे हुए हैं और वे सिचुएशन में सिर्फ वो एक नैरेटर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पूरी फैमिली उनकी, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, वो 2 ह्यूमन, उन्होंने सबने मेहनत की थी। तो नैरेटर यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2 ह्यूमन थे हर्ब्स एंड लैरी, उन्होंने किस तरह से पंपिंग किया इतना हार्ड जिसकी वजह से उनका शिप बचा। मैरी जो है वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में होते हुए उसके जो क्रूशियल आवर्स थे व्हील को पकड़ के रखने के, शिप को बराबर करने का, मैरी ने उसको हैंडल किया। जब मैरी ने व्हील को हैंडल किया तब जाके नैरेटर जो है वो रिपेयर वर्क कर पाए। मीन्स व्हाट हियर कि किस तरह से पूरी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। दूसरी बात, जो 7 years old गर्ल थी उसकी बेटी सुजैन, उसके हेड पे इतनी सारी इंजुरी हुई थी, आर्म में उसको कट हुआ था, बट वो लड़की ने एक आवाज नहीं की, उसने अपने डैड को मोटिवेट किया, उसने रोई नहीं, कुछ नहीं, मीन्स शी मोटिवेटेड। और जो 6 साल का लड़का है, ही वॉज गिवन द ग्रेट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन टू हिज डैड, उसने अपने डैड को बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन दिया। क्या इंस्पिरेशन दिया? उसने बोला कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल टुगेदर, कि अगर आप हमारे साथ हो डैडी, हम लोग अगर सब साथ में हैं तो हम लोगों को कहीं भी मरने का डर लगता नहीं है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मीन्स दिस इज अ वेरी नाइस चैप्टर स्टूडेंट। अगर तुम लोग इसको ध्यान से सुनोगे, एक बार तुम लोग पढ़ लेना टेक्स्ट बुक में से, मैंने तो टेक्स्ट बुक का ही पढ़ाया है बट आई हैवंट रीड लाइन टू लाइन मैंने रीड नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट ऑल द स्टोरी कम इनसाइड इट, पूरी स्टोरी इसके अंदर आ गई है। तो तुम लोगों को यही देखना है कि किस तरह से फैमिली मैटर्स, इसीलिए फैमिली होती है, उसकी प्लेस कोई और नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी टेक्स्ट बुक के अंदर तुम लोगों को, और ये फ्रेजेस भी यहाँ पे दी हुई है एट द स्टार्टिंग, 5 फ्रेजेस गिवन, उसका आंसर कैंप बुक में दिया हुआ है। अगर नहीं मिलता है तुम लोग मुझे डाउट सॉल्विंग लेक्चर में पूछ सकते हो कि मैम इसका मीनिंग हमें बताओ, तो मैं तुमको बता दूंगी। उसके बाद हियर सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। 2 के क्वेश्चन आंसर्स तुमको लिखने हैं। कौन से? अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये 2 क्वेश्चन आंसर जो टॉपिक तुमको दिए हुए हैं। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज भी दिया हुआ है पर उसके लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। तुमको कुछ क्वेरी आती है, समझ में नहीं आ रहा तो तुम लोग मुझे डाउट सॉल्विंग लेक्चर में आराम से पूछ सकते हो। सो यहाँ पे मेरा चैप्टर एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कंटेंट के साथ खुशी से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।